Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the very important and interesting topic coronary circulation. Do you know our heart never stop working, and to keep itself alive and pumping it needs its own blood supply. This special supply of the blood is called coronary circulation. So let's start the discuss about the coronary circulation. The coronary circulation is another name is the cardiac circulation, means it supply the blood to the myocardium. So we can say it is the cardiac circulation. So mainly three type of circulation present. First one the systemic circulation, second is the pulmonary circulation, and third one is the cardiac circulation. This cardiac circulation means that supply to the blood to the myocardium to do function properly. So this type of circulation is called cardiac circulation, or we can say this is the coronary circulation. So in this it consists of the arterial supply, venous drainage and lymphatic drainage. Three portion is present in the coronary circulations: the arterial supply, venous drainage and lymphatic drainage. So arterial supply, so let's start discuss about the arterial supply. The cardiac muscles is supplied by the two coronary arteries. It is supply the cardiac muscles, blood supply to the cardiac muscles by the two coronary arteries, the right and left coronary arteries. These both right and left coronary arteries arise from the sinuses behind the cup of the aortic valve at the root of the aorta, or normally we can say it both are right and left coronary artery arising from the root of the aorta, or we can say this is ascending portion of the aorta. So in the diagram you can easily see this portion is the behind the cup of the semilunar valve present in the aorta. So behind this portion, this arising this left coronary artery, and this one is the right coronary artery. So this is the two main branches of the coronary artery, right and left coronary artery. So first coronary artery, that is name is the right coronary artery. The right coronary artery is smaller than the left coronary artery. It is smaller than left coronary artery. It arising from the anterior coronary sinuses. So it present in anterior portion. So anteriorly present name is the right coronary artery. Second one is course of this one emerging from the surface of the heart and between the pulmonary trunk and the right auricles. तो कहाँ से इमर्ज हो रहा है, ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सरफेस ऑफ द हार्ट बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल्स. तो राइट ऑरिकल पोर्शन पे यहाँ पे इमर्ज हो रही है. Wind the around the inferior border to the reach and diaphragmatic surface to reach the posterior interventricular grooves. तो ये wind around the inferior borders, तो inferior border की तरफ मूवमेंट करता है and reach the diaphragmatic surface to the reach the posterior interventricular ग्रूव. तो इंट्रावेंट्रिकुलर जो ग्रूव है पोस्टीरियर पोर्शन में, वहाँ उस तरफ ये मूवमेंट कर जाती है. तो ये टर्मिनेट बाय द एनास्मोसिस विद द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, और एट बैक साइड में क्या एनास्मोसिस मेकिंग विद द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी. सो दिस इज द कोर्स ऑफ द राइट कॉर्नरी आर्टरी. its branches, what are the branches of this right coronary artery? So large branches is the marginal branches, and second is the post intraventricular branches. Marginal branches name से है, that is present on the margin, and posterior intraventricular branches that present in the posterior portion. तो intraventricular grooves जो के अंदर से होती हुई arteries निकलती हैं. The small branches is right atrial, infundibular portion, nodal is 60% cases, and टर्मिनल पोर्शन जो है दिस आर द स्मॉल ब्रांचेस. तो मेनली जो है लार्ज ब्रांचेस डिस्कशन होता है कौन कौन सा मार्जिनल है, और सेकंड इज द पोस्ट इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांचेस है. नेक्स्ट वन इज this is the diagram of this one, right side of the coronary artery, or these are the branches of the right marginal artery. So this is the right marginal artery, this one marginal artery present, or this is the right coronary artery, and this is present है posterior artery जो है posterior inlobular branches, this one है, और ये सारी ब्रांचेस जो है प्रेजेंट यहाँ पे है. दिस वन पीडीएजी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी दिस वन जो पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर जा रहे हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड पोर्शन है. एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो राइट कॉर्नरी आर्टरी है, किस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी से ब्लड सप्लाई कहाँ कर रहा है, तो इट सप्लाई द राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम विल सप्लाई द ब्लड. नेक्स्ट इज द वेंट्रिकल पोर्शन, वेंट्रिकल में ग्रेटर पोर्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल एक्सेप्ट द
एरिया एडजॉइनिंग द एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ग्रुप्स। तो ये इस एरिया को जो छोड़ के बाकी एरिया को क्या है ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल का मोस्ट ऑफ पोर्शन जो है सप्लाई बाय द राइट कॉर्नरी आर्टरी जो है। तो एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप्स, तो उस पोर्शन को छोड़ के ब्लड सप्लाई राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ये हो रहा है। नेक्स्ट वन इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एडजॉइनिंग द पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ग्रुप्स। तो कुछ स्मॉलर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर पोर्शन को भी ये सप्लाई कर रहा है। द पोस्टीरियर पार्ट और द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम पोर्शन को भी ब्लड सप्लाई कर रहा है। होल ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम्स ऑफ द हार्ट एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ द एवी बंडल ऐसे नोड इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी इन 40% केसेस। तो होल ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ द एवी बंडल, तो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो बंडल ब्रांचेस हैं जो लेफ्ट साइड में, उसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन जो ब्लड सप्लाई किससे हो रहा है, राइट पोर्शन ऑफ द राइट ब्रांचेस ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी जो है। तो ऐसे नोड इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी इन 40% केसेस के अंदर जो है वो है ऐसे नोड जो सप्लाई किसके थ्रू होता है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी से भी हो सकता है 40% केसेस के अंदर। नेक्स्ट वन इज द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी दिस इज लार्जर देन द राइट कॉर्नरी आर्टरी, दिस इज द लार्जर कॉर्नरी आर्टरी है। तो देखिए इन द डायग्राम दिस इज लार्जर कॉर्नरी आर्टरी फ्रॉम द लेफ्ट राइट कॉर्नरी आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनसिस। तो ये पोस्टीरियर जो आयोटिक साइनसिस है फ्रॉम हियर इट इज अराइजिंग। नेक्स्ट वन कोर्स कहाँ है, इट रन फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है एंड लेफ्ट एंड इमर्ज बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द लेफ्ट ऑरिकल्स। तो लेफ्ट इमर्ज हो रहा है फॉरवर्ड एंड लेफ्ट एंड इमर्ज बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द लेफ्ट ऑरिकल्स। तो पल्मोनरी ट्रंक्स और के लेफ्ट ऑरिकल्स के इमर्ज बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल्स से इमर्ज हो रही है। उसके बाद क्या, हियर द एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांचेस इज गिवन, और आगे इससे डिवाइडिंग किस ब्रांचेस के अंदर, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गया। द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी सम टाइम कॉल्ड द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो पहले तो एक ब्रांच बनी वो कौन सा, इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, देन फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी इज सम टाइम कॉल्ड द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जिसे कहते हैं वो है। तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर गिविंग ऑफ द एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच इट रन इनटू द लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नरी सल्कस। तो ये उसके बाद क्या है, जो ब्रांचेस जो है एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांचेस रन इनटू द लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नरी सल्कस। तो लेफ्ट जो पोर्शन है उसमें एंटीरियरी कॉर्नरी जो सल्कस है उसके अंदर ये क्या है, ग्रुप में उसके अंदर ब्रांचेस ये रन कर रही हैं। इट वाइंड द अराउंड द लेफ्ट बॉर्डर एंड नियर पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ग्रुप्स। तो ये वाइंड क्या कर रहे हैं, अराउंड द लेफ्ट बॉर्डर और नियर द पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ग्रुप। तो पोस्टीरियर पोर्शन में इंट्रावेंट्रिकुलर उसके अंदर चला जाएगा, टर्मिनेट बाय एनास्टोमोसिस विद द राइट कॉर्नरी आर्टरी। तो यानी कि बैक साइड में जो है पोस्टीरियर जो इंट्रावेंट्रिकुलर ग्रुप है उसके अंदर राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड से क्या ब्रांचेस आ रही हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, और दे मेकिंग देयर एनास्टोमोसिस over there. So they are, this is the called anastomosis present in the back side of the heart जो we can see। तो कौन से वाला पोर्शन है, इंट्रावेंट्रिकुलर ग्रुप पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर। इट्स ब्रांचेस कौन कौन सी है इसके, लार्ज ब्रांचेस जो है एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांचेस, सेकंड ब्रांचेस टू द डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है। तो ब्रांचेस एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांचेस, और सेकंड इज द सर्कमवेलेंट जो है ब्रांचेस वो वी कैन से। तो स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर गिविंग द सप्लाई टू द राइट पोर्शन ऑफ द एट्रिया, सो लेफ्ट एट्रियल गिविंग सप्लाई टू द पल्मोनरी, तो द पल्मोनरी एंड लास्ट एट द एंड टर्मिनल, सो दिस इज टर्मिनल। स्मॉल ब्रांचेस जो है ये हैं। तो देयर आर द ब्रांचेस ऑफ द left coronary arteries। So left coronary artery arising from this one posterior portion of the left side of the aorta, and coronary artery the left circumference branch, this is the left circumference branch, और often the marginal branches, तीसरा branches जो है left anterior जो portion जो है this one branches arising the PDA जो है diagonal branches है, left anterior descending portion है, so this one left anterior डिसेंडिंग डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो है, और एट द एंड जो है दैट इज द सेप्टल परफोरेटिंग ब्रांचेस फॉर्मेशन है। तो दिस इज द ओवरऑल ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज।
एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, विच एरिया को सप्लाई द ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई द ब्लड, वेंट्रिकल्स को सप्लाई द ब्लड, कौन सा वेंट्रिकल है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ग्रेटर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाइड बाय द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग द पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ग्रुप, तो जो एरिया पोस्टीरियर पोर्शन में वेंट्रा वेंट्रिकुलर ग्रुप जो है वहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई जो है उसको छोड़ के इन सब इससे पूरे पूरे ओवरऑल जो है किसको कर रहा है, राइट लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी कर रहा है। A small part of the right ventricles, small portion of the right ventricle adjoining the anterior intraventricular grooves, तो small portion जो है right ventricle का भी ये adjoining कर रहा है, वो blood supply कर रहा है anterior intraventricular groove से, तो anterior portion of the intraventricular septum इसको भी blood supply कर रहा है। part of the left branches of the atrioventricular bundle जो है एवी बंडल जो है उसको भी लेफ्ट ब्रांचेस वाले पोर्शन को ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो दिस इज एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मेनली क्या है, ग्रेटर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सप्लाई बाय दिस लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। Next one is the collateral circulation. So what is the collateral circulation? Collateral circulation means cardiac anastomosis. The two coronary artery anastomose in the myocardium. तो कई बार क्या जो coronary circulation जो है वो क्या है आपस में making the communication between each other, so they unite each other, so this making the anastomosis, that is called anastomosis. The two coronary artery when meet each other, that is called anastomosis in the myocardium. So e extra cardiac anastomosis, the coronary artery anastomosis with the vasa vasorum of the aorta or vasa vasorum of the pulmonary arteries, internal thoracic arteries, the bronchial arteries, phrenic arteries. These channels open up in the emergencies when the coronary arteries are blocked. The coronary artery blocked है, then we making the coronary circulation किसके थ्रू, जिसके क्या है वैसा विजोरम ऑफ द आयोटा से ले सकते हैं, वैसा विजोरम पल्मोनरी आर्टरी से, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से, या ब्रोंकियल आर्टरीज जो है उससे, और या फ्रेनिक आर्टरीज वो है। तो दीज चैनल्स ओपन अप इन द इमरजेंसी अंदर व्हेन कॉर्नरी आर्टरीज आर ब्लॉक्ड। दिस इज द कोलेटरल सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन इज द कॉर्नरी आर्टरीज डोमिनेंसी। तो कॉर्नरी आर्टरी डोमिनेंस कौन कौन सी हैं, तो आर्टरीज दैट गिव द पोस्टीरियर intraventricular artery determine the coronary dominance. तो posterior intraventricular arteries dominance the coronary dominance. If the posterior intraventricular artery is supplied by the right coronary artery, then the coronary circulation can be classified as right dominant है। If the posterior intraventricular artery is supplied by the circumflex arteries, a branches of the left arteries, then the coronary circulation can be classified as a left dominant है। Next one is the, if the posterior intraventricular artery is supplied by the both right coronary artery and the circumflex artery, then the coronary circulation can be classified as the codominant। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट है, अगर पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी जो इज सप्लाइड किससे हो रहा है, राइट कॉर्नरी आर्टरी से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द राइट डोमिनेंट। और इफ पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी जो है सप्लाइड हो रहा है बाय द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से, तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से, तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट डोमिनेंट। और अगर दोनों आर्टरीज हो रहा है राइट कॉर्नरी आर्टरी से भी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से भी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट। दिस इज द कॉर्नरी आर्टरी डोमिनेंट। नेक्स्ट वन इज द फंक्शनल डिवीजन। तो फंक्शनल डिवीजन के अंदर लार्ज कॉर्नरी आर्टरीज एपिकार्डियल कोरोटोनरी आर्टरीज लाई ऑन द एपिकार्डियल सरफेस, कंडक्ट द ब्लड विद लिटिल रेजिस्टेंस। तो ये कंडक्ट किससे ब्लड कर रहा है, विद लिटिल रेजिस्टेंस है कुछ इसके अंदर। एंड स्मॉल कॉर्नरी आर्टरीज डिसेंड इनटू द माइकार्डियम आर ऑफ द टू टाइप्स। तो स्मॉल कॉर्नरी आर्टरीज डिसेंडिंग इनटू द माइकार्डियम के अंदर आर टू टाइप जो है, सब epicardial vessels and subendocardial vessels. Small coronary arteries are the principal resistance vessels of the heart. Changes in their diameter regulate the coronary blood flow. That regulating the coronary blood flow. This is the functional division of the coronary arteries. Next one is the venous drainage of the heart. तो venous drainage of the heart क्या है, the venous drainage of the heart is by three means जो है, coronary sinuses, anterior cardiac veins and vena cordis minimic जो है वो। तो ये तीन चीज़ें कौन कौन से देखिए यहाँ पे, तो coronary sinuses, तो this is the largest of the vein of the heart situated in the left posterior coronary sulcus। तो left
पोस्टीरियर कॉरोनरी सर्कस है वहाँ ये प्रेजेंट है। लार्जेस्ट वेन है, इट इज़ अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एंड बाय द ओपनिंग इनटू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। तो ये ओपनिंग कहाँ हो रही है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम के अंदर ओपन हो रहा है। तो इट कंट्रीब्यूट्स आर, इसमें कौन कौन सी वेन प्रेजेंट है? फर्स्ट में द ग्रेट कार्डियक वेन, इट एंटर द लेफ्ट एंड ऑफ द कॉर्नरी साइनसेस। तो एंटर द लेफ्ट एंड ऑफ द कॉर्नरी साइनसेस, वहाँ से दैट इज द ग्रेट कार्डियक वेन। सेकंड क्या? मिडल कार्डियक वेन, इट अकम्पनीज द पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरीज, उससे कनेक्ट है एंड जॉइंट द राइट एंड ऑफ द कॉर्नरी साइनसेस। तो वो जो हमने देखा है ग्रेट कॉर्नरी वेन, इट इज़ लेफ्ट एंड ऑफ द कॉर्नरी साइनसेस, और मिडल कार्डियक वेन इट जो है दैट इज़ द जॉइंट द राइट एंड ऑफ द कॉर्नरी साइनसेस। राइट एंड लेफ्ट का डिफरेंस है इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज द स्मॉल कार्डियक वेन, इट अकम्पनीज द right coronary artery and join the right end of the coronary sinuses. This is a small cardiac vein, it is accompanies the right coronary artery, तो right coronary artery से connect है and join the right end of the coronary sinuses. Next one is the posterior vein of the left ventricle, it run on the diaphragmatic surface of the left ventricle and end in the middle of the coronary circus. तो posterior vein of the left ventricle जो है run on the diaphragmatic surface of the left ventricle portion and in the middle of the coronary sinuses. Next one is the oblique vein of the left atrium, oblique of the left vein of the left atrium, it run on the posterior surface, means posterior surface से run हो रहा of the left atrium portion में, और joined the left end of coronary sinuses and develops from the left common cardinal vein जो है that develop from the left common cardinal vein. Right marginal vein, it accompanies the marginal branches of the right coronary artery. तो right coronary arteries की जो marginal branches हैं उसके थ्रू जो formation हो रहा है this is the right marginal vein, accompanies कर रही हैं। Next one is the anterior cardiac vein, 3 to 4 small veins run on the anterior wall of the right ventricles, open directly into the right atrium. This open into right atrium जो है वो है। Next one vena chordae minimi, तो आल्सो कॉल्ड द स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन, इनको हम स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन भी बोलते हैं। और द दिस न्यूमरस स्मॉल वेन प्रेजेंट इन 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट विच ओपन डायरेक्टली इनटू द कैविटीज। तो यहाँ जो ये प्रेजेंट है दैट इज द वेनस स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन जिसे कहते हैं वो है। द बेसिन्स वेनस नेटवर्क इज कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव pathway of the venous drainage of the myocardium. Its names under the German anatomist Adam Christian the Basuus, who described then in 1708 treatise called Disruptio Medico in Ergulalis de Circulo Sangularis Incordia. सो ये जो है यहाँ पे विनस स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन जो प्रेजेंट है इसने यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इज द लिम्फेटिक्स ऑफ द हार्ट, तो लिम्फेटिक ऑफ द हार्ट इज अकम्पनाई द कॉर्नरी आर्टरीज एंड फॉर्म द 2 ट्रंक्स जो है ये 2 ट्रंक्स फॉर्मेशन कर रहा है, राइट ट्रंक एंड इन द ब्रेकियोसेफेलिक नोड एंड द लेफ्ट ट्रंक इनटू द ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड। तो राइट पोर्शन में जो है दैट इज द brachiocephalic node and left trunk into the tracheo-brachial lymph node at the bifurcation of trachea. Next one is the last point of this session, the coronary blood flow. तो coronary blood flow क्या है? The resulting coronary blood flow is about 225 ml per minute, which is about 0.7 to 0.8 ml per gram of the heart muscles और 4 to 5% of the total cardiac output. तो जो टोटल कार्डियक आउटपुट है उसका 4 to 5% जो है ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम हो रहा है, या वी कैन से कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर सर्कुलेशन होता है। इट सर्व द मस्कुलर एक्सरसाइज द वर्क ऑफ द हार्ट इंक्रीज एंड द coronary blood flow and the coronary blood flow may be increased up to 2 liters. तो जैसे ही एक्सरसाइज कर रहा है या कुछ एक्टिविटीज़ हैं उस टाइम क्या इट कैन बी इंक्रीज अप टू कितना 2 लीटर्स पर मिनट जो हो सकता है। तो वैसे नॉर्मली ब्लड फ्लो है कॉर्नरी के अंदर 225 ml पर मिनट, वो कैन एक्सटेंड अप टू 2 लीटर पर मिनट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉर्नरी सर्कुलेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।